Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 2 The King's Magic Drum of our English literature book as we assessed. Students, we have read question answer in this exercise A and exercise B first in our last video, and today we are going to solve and read exercise B second and exercise C which is on page number 21 of your English literature book as we assessed. So student, firstly we will solve exercise B second and after it we will solve exercise C in our Fair English Literature notebook. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Okay, तो स्टूडेंट जो एक्सरसाइज ए थी आंसर दिस क्वेश्चन एंड उसके बाद जो एक्सरसाइज है बी फर्स्ट ओके वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, और जो एक्सरसाइज बी का जो सेकंड पार्ट है जो हमारी बुक पे दिया हुआ है तो आज हम उसे अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर के नोटबुक में सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्टली वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज बी. ओके, बी का सेकंड पार्ट. What will you take? You may have anything you like. Okay, what means क्या? Will it's your future tense. You means आप. Take means लेना. Okay, what will you take? It's mean क्या आप लेंगे? Okay, आप क्या लेंगे? You may have anything you like. You means आप. Okay, may means होता है कि हो सकता है. Okay, and have anything. Anything means कुछ भी. You means आप. Like means पसंद करते हो. You may have anything you like. It's mean आपके पास कुछ भी हो सकता है जो आप पसंद करते हैं. It's mean the context is what will you take? You may have anything you like. आप क्या लेंगे? आपके पास कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद है. It's mean कि आपको जो भी पसंद है ना वो आप ले सकते हैं. क्लियर? Okay, let's see the question number A. Question number A is who said this and to whom? Okay, who means कौन या किसने. said means कहा. this means ये. Okay, who said this? It's mean ये किसने कहा. and means और. to whom means किससे. who said this and to whom ये किसने कहा और किससे कहा. The answer of A number question is King said this to daughters. Okay, King means राजा. said means कहा. It's the second form of say. Okay, say की second form होती है said. Okay, said means कहा. this means ये है. to means say. daughters. Okay, it's mean कछुआ. King said this to daughter. तो राजा ने, जो राजा इफ्रीम ड्यूक थे, उन्होंने किससे कहा. कछुए से कहा. Okay, let's see question number B. Question number B is Why did the speaker say this? Why means क्यों. Did means past independence tense है, ये आपकी past independence की helping verb है. Did. The speaker means वक्ता, बोलने वाला. Say means कहा. This means ये. Why did the speaker say this? वक्ता ने ये क्यों कहा. Okay, the answer of this question number B is the speaker said this because the daughters asked for compensation. The speaker means वक्ता. said means कहा. It's the second form of say. say की second form है. Okay, say means होता है कहना और said means होता है कहा. Okay, से की सेकेंड फॉर्म है. इट्स मीन जो हमारा आंसर है ना ये पास इंडिपेंडेंस के टेंस में. ओके, दिस स्पीकर सेड. इट्स मीन वक्ता ने कहा. दिस मीन्स यह है. बिकॉज मीन्स क्योंकि. द टर्टर्स मीन्स कछुआ. आस्क्ड मीन्स द स्पीकर सेड दिस बिकॉज द टर्टर. इट्स मीन कछुआ. आस्क्ड मीन्स कहा. ओके, या फॉर के लिए. कॉम्पेंसेशन. इट्स मीन होता है हियर द मीन ऑफ कॉम्पेंसेशन दैट बदले में बोल सकते हैं, या मुआवजा होता है ना वो बोल सकते हैं, या वी कैन टू से दैट नुकसान की भरपाई. ओके, जैसे कोई लॉस हो जाता है ना तो उसकी भरपाई के लिए इट्स मीन उसके बदले में कुछ चाहिए होता है, उसे बोलते हैं कॉम्पेंसेशन. COMPENSATION. कॉम्पेंसेशन इट्स मीन होता है मुआवजा या बदले में या नुकसान की भरपाई. ओके, वाई डिड द स्पीकर से दिट. तो स्पीकर जो है जो इस कॉन्टेक्स्ट में स्पीक कर रहा है, बोला है जिसने ये कॉन्टेक्स्ट. व्हाट विल यू टेक. यू मे हैव एनीथिंग यू लाइक. ओके, कि आप क्या लोगे, आपके पास कुछ भी हो सकता है जो आप पसंद करते हो. इट्स मीन आपको कुछ भी मिल सकता है जिसे आप पसंद करते हो. तो स्पीकर ने क्यों कहा. इट्स मीन ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ना ये किसने बोला. ये किंग ने बोला था. ओके, इफ्रीम ड्यूक किंग ने बोला था. और क्यों बोला था इसका आंसर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना. ओके, राइट करना है. लेट्स सी. आंसर इज द स्पीकर सेड दिस बिकॉज द टर्टर आस्क्ड फॉर कॉम्पेंसेशन. ओके, तो स्पीकर ने इसलिए कहा. ओके, वक्ता ने इसलिए बोला. और हमारे यहाँ पे वक्ता कौन है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट किसने बोला है. ये कॉन्टेक्स्ट किंग ने कहा है. ओके, कॉन्टेक्स्ट ये किंग ने बोला है. इफ्रीम ड्यूक किंग ने बोला है. तो यहाँ स्पीकर हियर द मीन ऑफ स्पीकर इफ्रीम ड्यूक किंग. ओके, जो इफ्रीम ड्यूक हमारे किंग है कैलाबर के, वहाँ यहाँ पे स्पीकर उनके लिए यूज़ किया गया है. ओके, वही स्पीकर है. ये कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ही बोला है. द आंसर इज दिस स्पीकर सेड दिस बिकॉज द टर्टर आस्क्ड फॉर कॉम्पेंसेशन. इट्स मीन वक्ता ने ये इसलिए कहा क्योंकि टर्टर अपने नुकसान की भरपाई चाहता था. ओके, क्योंकि कछुआ अपने नुकसान की भरपाई चाहता था, या वी कैन से दैट वक्ता ने इसलिए कहा कि कछुआ मतलब उसके बदले में कुछ चाहता था, या अपने नुकसान की भरपाई में कुछ चाहता था, या मुआवजे के लिए चाहता था. ओके, मुआवजा चाहता था. क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर C ऑफ एक्सरसाइज B सेकेंड. ओके,
Question number C is what did the listener want to have from the speaker? Okay, what means क्या did, it's a past indefinite tense. The listener, listen means होता है सुनना, listener means सुनने वाला, श्रोता. Okay, want means चाहत, want to means चाहना था. Okay, have from the speaker. Okay, have means रखना या पाना, from means से, the speaker means वक्ता से. Okay, देखो speaker means होता है वक्ता. Okay, इट्स मीन बोलने वाला, क्लियर. और लिसनर मीन्स होता है श्रोता, सुनने वाला. जैसे मैं स्पीक कर रही हूँ ना, तो आई एम ए स्पीकर नाउ. ओके, तो अभी मैं स्पीकर हूँ एक, और यू आर लिसनिंग माई वर्ड्स ना, तो यू आर लिसनर नाउ. ओके, तो अभी आप लिसनर है और मैं स्पीकर हूँ. ओके, तो जो स्पीकर होता है इट्स मीन होता है बोलने वाला, लिसनर मीन्स होता है सुनने वाला, श्रोता. ओके, व्हाट डिड द लिसनर वांट टू हैव फ्रॉम द स्पीकर. ओके, तो इट्स मीन कि व्हाट मीन्स क्या, इट्स पास्ट इंडिपेंडेंस, लिसनर मीन्स श्रोता, व्हाट मीन्स चाहता था. ओके, और वांट टू मीन्स चाहता था, हैव मीन्स रखना, फ्रॉम मीन्स से, द स्पीकर मीन्स वक्ता से. ओके, तो जो स्पीकर था बोलने वाला, सॉरी जो लिसनर था सुनने वाला था, ये स्पीकर से क्या चाहता था, बोलने वाली से क्या चाहता था. इट्स मीन्स श्रोता वक्ता से क्या चाहता था. ओके, अब मैं क्लियर कर दूँ कि स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है. ओके, स्टैंड जो कॉन्टेक्स्ट है ना हमारा, जो ये किंग एक जो कॉन्टेक्स्ट दिया है, तो इसमें ये जो स्पीक करने वाले हैं हमारे स्पीकर हैं, वो हमारे किंग इफ्रीम ड्यूक है, जो कैलाबर के किंग है. व्हाट विल यू टेक, यू मे हैव एनीथिंग यू लाइक. ओके, आप क्या लोगे और आप इसके बदले में कुछ भी ले सकते हो. इट्स मीन आपके पास कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो. ओके, तो आप क्या लोगे. तो ये किंग ने बोला था ना, वी हैव रीड दिस स्टोरी, द किंग्स मैजिक स्टोरी रीड कर चुके हैं, और मैं अच्छे से पता है, वी नो वेरी गुडली दैट दिस स्टैंजा, दिस सॉरी लाइन से किंग. ओके, टू टोटर, ये जो लाइन है ना हमारी, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये किंग इफ्रीम ड्यूक ने कहा है टोटर से. ओके, तो स्पीकर जो है यहाँ पे वो हमारे किंग है, कैलाबर के किंग है इफ्रीम ड्यूक. ओके, और जो लिसनर है, क्योंकि वो लिसनर सुन रहा है, लिसनर से कहा, सॉरी जो लिसनर है हमारे, ओके, वो टोटर है, क्योंकि टोटर उसे सुन रहा है, उसे लिसन कर रहा है. क्लियर. तो स्टूडेंट, इट्स मीन कि वक्ता ने श्रोता से, इट्स मीन व्हाट डिड द लिसनर वांट टू हैव फ्रॉम द स्पीकर. इट्स मीन सुनने वाला श्रोता वक्ता से क्या चाहता था. इट्स मीन वी कैन टू से इन सिंपल लैंग्वेज कि श्रोता वक्ता से क्या चाहता था, या हम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि टोटर किंग से क्या चाहता था. ओके, तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी इज द लिसनर वांटेड टू हैव अ मैजिक ड्रम फ्रॉम द स्पीकर. द लिसनर, इट्स मीन सुनने वाला, श्रोता. वांटेड मीन्स चाहता था, इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ वांट. ओके, वांट की सेकंड फॉर्म है. ओके, वांट मीन्स चाहना, एंड वांटेड मीन्स चाहता था. ओके, टू हैव मीन्स पाना, रखना. ओके, आ मीन्स एक, मैजिक मीन्स जादुई, जो वंडरफुल ड्रम था ना वही. ओके, ओके, क्लियर. जो वंडरफुल ड्रम था उसी की बात कर रहे हैं हम. ई मीन्स एक, मैजिक मीन्स जादुई, ड्रम मीन्स ड्रम, फ्रॉम मीन्स ये, द स्पीकर मीन्स बोलने वाला, वक्ता. ओके, द लिसनर वांटेड टू हैव अ मैजिक ड्रम फ्रॉम द स्पीकर, सुनने वाला. ओके, या वी कैन से दैट श्रोता वक्ता से एक जादुई ड्रम लेना चाहता था. ओके, क्लियर. या वी कैन टू से इन सिंपल लैंग्वेज कि टर्टर किंग से एक मैजिक ड्रम लेना चाहता था. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा किंग को, टर्टर को थोड़ा सा अदर वर्ड में चेंज किया गया है. लिसनर यूज़ किया गया है टर्टर के लिए, और स्पीकर यूज़ किया गया है यहाँ पे किंग के लिए. ओके, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा वर्ड्स को थोड़ा डिफरेंस कर दिया गया. ओके, तो बट नोटिस करना कि द लिसनर वांटेड टू हैव अ मैजिक ड्रम फ्रॉम द स्पीकर. इट्स मीन श्रोता वक्ता से एक मैजिक ड्रम प्राप्त करना चाहता था, एक मैजिक ड्रम लेना चाहता था. क्लियर. तो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज बी सेकंड, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज बी second. Okay, now we are going to solve exercise C, think and answer, in our fair English literature notebook. Okay, so let's see exercise C. Okay, think and answer. Think means होता है सोचना या विचार करना. Okay, and means और, answer means उत्तर दीजिए. Think and answer, it's mean विचार करिए और उत्तर दीजिए. Okay, let's see first number question. The first number question is, what do you think happened after the tortoise and his family got beaten by the evil man in the story The King's Magic Drum? What means क्या? Do it's your past and indefinite tense. You means आप, think means सोचते हैं या लगता है. Okay, think means सोचना या लगना. What do you think? It's mean आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं. Okay, happen means हुआ. Okay, after means बाद में, डिटोटर means कछुआ, and means और, his family means उसका परिवार. ओके, उसके परिवार के साथ उसके साथ क्या होता है. ओके, get beaten, it's mean पिटाई होने के बाद. ओके, beaten it's a third form of beat. ओके, by मीन्स द्वारा, द ईबो मैन, इट्स मीन कि जो आदिवासी मानवों के द्वारा. ओके, आदिवासी मानवों. ओके, इन द स्टोरी मीन्स स्टोरी, इट्स मीन टेल, कहानी. ओके, द किंग्स मैजिक ड्रम, राजा का जादुई ड्रम. इट्स मीन व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर द टोटर्स एंड हिज फैमिली गेट बीटन बाय द ईबो मैन इन द स्टोरी द किंग्स मैजिक ड्रम. ओके,
इट्स मीन कि आपको क्या लगता है कि जो स्टोरी है द किंग्स मैजिक ड्रम में, इसमें टर्टल की और उसकी फैमिली की पिटाई होने के बाद क्या हुआ होगा। ओके, क्या होता है, तो ये इसका मीन है इस क्वेश्चन का कि आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं कि जो स्टोरी है, जो कहानी है राजा का जादुई ड्रम द किंग्स मैजिक ड्रम, इसमें टर्टल की और उसकी फैमिली की जो ईबो मैन के द्वारा, इट्स मीन आदिवासी मानवों के द्वारा पिटाई होने के बाद क्या होता है। ओके, तो स्टूडेंट जो स्टोरी में सिर्फ इतना डिस्क्राइब किया गया कि ईबो मैन आते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं क्योंकि जो टर्टल्स ने गलती से बाय मिस्टेक एक स्टिक पे उसका पैर पड़ गया होता है। चूँकि जो ड्रम है, मैजिक ड्रम है, उस पर एक कर्ज है कि कोई भी अगर उसका ऑनर्स, ड्रम का ऑनर एक किसी टूटी हुई ट्री के टुकड़े पे या किसी स्टिक पे पैर उसका पड़ जाएगा, गलती से भी पड़ गया ना, तो नेक्स्ट टाइम जब वो ड्रम को बीट करेगा तो वो ड्रम बहुत से गुड्स, फूड, वाइन वगैरह सब प्रोवाइड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, ईबो मैन आएंगे और उस ड्रम के ऑनर को पीटेंगे, क्योंकि गलती से जब शो ऑफ करके टर्टल अपने घर आ रहा होता है ना, तो गलती से उसका पैर पड़ जाता है, उसे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता है। और जब वो मॉर्निंग टाइम से भूख लगती है, उसकी फैमिली को भूख लगती है, तो वो जब ड्रम को बीट करते हैं ना, तो ड्रम अच्छे अच्छे फूड, वाइन वगैरह प्रोवाइड करने की वजह क्या करती है, बहुत सारे ईबो मैन आते हैं, उसका पूरा हाउस फिल्ड हो जाता है, भर जाते हैं ईबो मैन से, और उसकी और उसके चिल्ड्रन की, उसकी वाइफ की बहुत अच्छे से पिटाई करते हैं। ओके, ईबो मैन तो यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको क्या लगता होगा कि जो स्टोरी है ना द किंग्स मैजिक ड्रम, राजा का जादुई ड्रम, तो इस स्टोरी में ईबो मैन के द्वारा टर्टल और उसकी फैमिली की पिटाई होने के बाद क्या हुआ होगा। ओके, तो स्टोरी सिर्फ यहीं इसका एंड हो जाता है कि जब आके उसकी पिटाई करते तो वो सोचता है कि अच्छा, जब मैंने फीस्ट ऑर्गेनाइज की थी, ओके, दावत दी थी, तो सब लोग कम लोग आए थे, ओके, तो इस ड्रम ने बहुत अच्छे से सब फूड वगैरह सब प्रोवाइड की थी, वाइन वगैरह प्रोवाइड की थी, लोग कम आए थे, लेकिन ड्रम ने इतना सारा फूड वगैरह प्रोवाइड की थी कि लोगों ने पेट भर के खाया था। ओके, लेकिन आज जब मुझे और मेरी फैमिली को भूख लग रही है और जब मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे फूड प्रोवाइड करे, ड्रिंक प्रोवाइड करे, तो इसमें से बॉस मैन ने मुझे आके निकल के पीट रहे हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जब भी कोई भी मुझसे फिस्ट के लिए बोलेगा कि मुझे थोड़ा सा फूड दे दो, मुझे भूख लगी, तो मैं क्या करूँगा, इस ड्रम को बीट करूँगा, और जिसको सेम मेरे साथ हुआ है वही उसके साथ भी होगा। ओके, तो इस यहाँ तक कि हमारी स्टोरी इस चैप्टर में फिनिश हो चुकी है। ओके, स्टोरी सिर्फ यहीं तक है। स्टोरी के आगे के बारे में बात कर रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो स्टोरी है द किंग्स मैजिक ड्रम है ना, तो इसमें क्या हुआ होगा आगे कि जब ईबोस मैन आके इस टर्टल की, इसकी फैमिली की पिटाई करती है, तो फिर आगे क्या हुआ। ओके, तो वही थिंक करना, आंसर देना है। द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज आई थिंक द टर्टल्स विल वांट सैड द सेम फैट विद द other people because he wanted to see that why did Ebo man beat him and his family while he had given feast. It means मुझे थिंक मीन्स लगता है, या आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, द टर्टल्स मीन्स कछुआ। ओके, विल इट्स अ फ्यूचर टेंस, वाट मीन्स वांट इट्स मीन चाहता था। ओके, वांट इट्स मीन्स उसने चाहा, शेयर मीन्स होता है शेयर करना, साझा करना, बांटना। द सेम फेट मीन्स होता है कि तथ्य या घटना। ओके, सेम मीन्स सेम वैसे ही। ओके, सेम फेट इट्स मीन्स वैसे ही घटना। विद द अदर पीपल मीन्स दूसरे लोगों के साथ। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहता था, इट्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वांट। ओके, वांट की सेकेंड फॉर्म में वांटेड। टू सी मीन्स देखना, डैट मीन्स की, वाई मीन्स क्यों, डिड इट्स अ पास्ट इंडिपेंडेंस, देन ईबो मैन मीन्स आदिवासी मानवो। ओके, बीट मीन्स पीटा, ही मीन्स उसे, एंड मीन्स और, हिज मीन्स उसकी, फैमिली मीन्स परिवार, वाइल मीन्स जबकि, ही मीन्स वह, हैड टू इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, गिवन मीन्स दे चुका था। ओके, देना, हैड गिवन इट्स मीन दे चुका था। फीस्ट मीन्स दावत। ओके, I think that tortoise will want share the same fat with the other people because he wanted to see that why did Ebo man beat him and his family while he had given feast. तो मुझे लगता है ना कि टर्टल, ये जो उसके साथ घटना हुई है ना, वो सेम इस घटना को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। इट्स मीन दूसरे लोगों के साथ वही करना चाहता है जो उसके साथ हुआ। ओके, इट्स मीन स्टूडेंट मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि टर्टल ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि वो कह रहा है कि अच्छा, जब मैंने फीस्ट ऑर्गेनाइज़ की थी तो बहुत सारे लोग आए थे, कि मतलब बहुत सारे स्टम ने मतलब फूड अच्छे से वगैरह, फूड वगैरह, वाइन वगैरह सब प्रोवाइड की थी, जबकि लोग कम थे, लेकिन फूड और वाइन वगैरह बहुत ज़्यादा इसने प्रोवाइड कर दी थी। ओके, और क्योंकि लोगों को खिलाना था, सबको फीस्ट थी, वहाँ पे दावत थी, और जब आज मुझे भूख लगी, मेरी फैमिली को भूख लगी, तो ये ड्रम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही, ना फूड और ना ही वाइन, और उसके बदले में फूड और ड्रिंक तो प्रोवाइड नहीं करी, और क्या करी, ऊपर से ये इबोस मैन आके पीट रहे हैं, है ना, ये तो गलत बात है ना। तो यही टर्टल सोच रहा था, कहता है अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं ना, ठीक है, इबो मैंने मेरी पिटाई कर ली तो कर ली। ओके, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टाइम कोई भी मुझसे बोलेगा फीस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए, दावत लेने के लिए, या बोलेगा कि मुझे भूख लगी, थोड़ा सा फूड दे दो, तो मैं क्या करूँगी, इस ड्रम को
बीट करूँगा, मैं उसे ये नहीं बताऊँगा कि इसमें से इबो मैन आएंगे, और इस ड्रम को बीट करूँगा और फिर क्या होगा, इबो मैन आएंगे और फिर उसकी पिटाई करेंगे आके। ओके, उनको वो लोग मुझसे फूड और ड्रिंक वगैरह मांगेंगे और उनकी पिटाई होगी, इबो मैन निकल के आएंगे, उसकी पिटाई करेंगे। ओके, जो फूड और वाइन वगैरह मांगेगा। ओके, जैसे मेरे साथ हुआ सेम हम उसके साथ भी वैसे करेंगे। ओके, तो ये ऐसा सोच रहा है टर्टल। ओके, लेकिन स्ट्रेंज ऐसा नहीं है, क्योंकि उस जो ड्रम है उस पर ये कर्ज है कि जो भी मतलब उस ड्रम का ऑनर जब उसे बीट करेगा, ड्रम का ऑनर का अगर पैर गलती से स्टिक पे पड़ गया और जब वो उसे बीट करेगा तो इबो मैन आके उसकी पिटाई करेंगे। ओके, तो क्या होता है कि वही सेम है कि मुझे लगता है ना कि टर्टल जो है वो उसके साथ जो घटना हुई है, जो उसके साथ जो भी उसके साथ इंसाइट हुआ है, वो दूसरे लोगों के साथ उससे बांटना चाहता है। वो चाहता है कि जो जैसा सेम मेरे साथ हुआ वैसे ही सेम दूसरों के साथ। ओके, बिकॉज ही वांटेड टू सी दैट, क्योंकि वह यह देखना चाहता था कि इवो मैन ने उसे और उसकी फैमिली को क्यों पीटा आके, वाइल ही हैड गिवन फीस, जबकि वो एक दावत दे चुका था, जबकि वो लोगों को खिलाता था, दावत देता था, फिर भी उसे क्यों पीटा। ओके, तो यही है कि आई थिंक दैट टर्टल विल वांट सेट द सेम फैक्ट विद द अदर पीपल बिकॉज ही वांटेड टू सी दैट व्हाई डिड इवो मैन बीट हिम एंड हिज फैमिली व्हाइल ही हैड गिवन फीस। ओके, तो मुझे लगता है ना कि जो टर्टल है वो जो उसके साथ इंसाइट हुआ है, जो उसके साथ घटना हुई है, वो लोगों के साथ शेयर करेगा। इट्स मीन सेम वो वैसा ही लोगों के साथ करेगा। जब भी कोई बोलेगा कि फीस्ट ऑर्गेनाइज करो, कुछ खाने को दो, तो वो ड्रम को बीट करेगा और इवो मैन आके से पीटेंगे। ओके, जो फीस्ट जो मांगेगा फूड वगैरह, ड्रिंक वगैरह, वो ये देखना चाहता है, वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि मतलब इबो मैन मतलब आके उसकी पिटाई करते हैं या नहीं। ओके, इट्स मीन कि जो इबो मैन ने उसकी पिटाई क्यों की जब कि वो दावत ऑर्गेनाइज कर चुका था। ओके, क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज a hobby keeps us busy in our leisure time. If you had the chance to learn to play any instrument in a day, which one would you choose? Give reasons for your answer. Okay, मीन्स एक हॉबी मीन्स होता है स्टूडेंट आदत होता है, वैसे शौक होता है हॉबी मीन्स। ओके, अ हॉबी इट्स मीन एक शौक। ओके, कीप्स मीन्स रखता है, अस मीन्स हमें, बिजी मीन्स व्यस्त। अ हॉबी कीप्स अस बिजी, इट्स मीन एक शौक जो होता है ना वो हमें व्यस्त रखता है। इन अवर लीजियोर टाइम, इन मीन्स में, अवर मीन्स हमारे, लीजियोर, हियर द मीन ऑफ लीजियोर, LEISURE, इट्स मीन होता है खाली। ओके, टाइम मीन्स समय। अ हॉबी कीप्स अस बिजी इन अवर लीजियोर टाइम, एक शौक हमें अपने खाली समय में व्यस्त रखता है। ओके, इफ़ यू हैड द चांस टू लर्न द प्ले एंड नी इंस्ट्रूमेंट इन अ डे, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स आपको, हैड इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, इट्स मीन मिले, दी चांस मीन्स अवसर। ओके, यदि आपको एक अवसर मिले टू लर्न, लर्न मीन्स हो गया स्ट्रेंथ की सीखना। ओके, सीखना। टू प्ले मीन्स होता है हियर द मीन ऑफ प्ले दैट प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, कि प्ले मीन्स हो गया स्ट्रेंथ बजाना। ओके, हियर द मीन ऑफ प्ले इज नॉट खेलना, हियर द मीन ऑफ प्ले दैट बजाना। ओके, एनी मीन्स कोई भी, इंस्ट्रूमेंट मीन्स स्ट्रेंथ होता है वाद्य यंत्र, जैसे गिटार हो गया और जो भी हमारे वायलिन वगैरह हो गए और फ्लूट हो गई। ओके, और पियानो हो गया, ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ओके, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, डे मीन्स दिन। इफ़ यू हैड द चांस टू लर्न टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट इन अ डे, इट्स मीन कि यदि आपको एक दिन में कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखने का मौका मिले, इट्स मीन यदि आपको एक दिन में कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखने का मौका मिले कि आप एक दिन में क्या कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट को लर्न कर सकते हैं, प्ले करना, कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना होता है, उसे सीखने का आपको चांस मिले। ओके, तो क्या है कि विच वन वुड यू चूज़, तो विच मीन्स कौन सा, वन मीन्स एक। ओके, वुड यू चूज़, यू मीन्स आप, चूज़ मीन्स सेलेक्ट करेंगे, इट्स मीन चुनेंगे। विच वन वुड यू चूज़, इट्स मीन तो आप किसे चुनेंगे। ओके, तो आप किसे चुनेंगे। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। गिव मीन्स दीजिए, रीजन्स मीन्स कारण, फॉर मीन्स के लिए, योर मीन्स अपने, आंसर मीन्स उत्तर। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, इट्स मीन अपने उत्तरों के कारण बताइए, अपने उत्तरों के कारण दीजिए। ओके, तो इट्स मीन अ हॉबी कीप्स अस बिजी इन अवर लीजर टाइम। इफ़ यू हैड द चांस टू लर्न टू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट इन अ डे, विच वन वुड यू चूज़? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। इट्स मीन कि हमें एक जो शौक़ होता है वो हमें अपने खाली समय में व्यस्त रखता है, हमारी लीजर टाइम में हमें व्यस्त रखता है। यदि आपको एक दिन में कोई वाद्य यंत्र सीखने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ओके, तो स्टूडेंट
जो हमारे शौक़ होते हैं, जैसे किसी की हॉबी होती है स्टोरी लिसन करना, स्टोरी रीड करना, ओके, स्टोरी सुनना या स्टोरी रीड करना। जैसे मेरी हॉबीज़ हैं कि न्यूज़पेपर रीड करना, स्टोरीज़ रीड करना, ओके, म्यूज़िक लिसन करना, डांसिंग, ओके, तो ये सारी मेरी हॉबीज़ है। तो वैसे जो शौक़ हमारे होते हैं, हॉबीज़ होती है, तो वो हमारे खाली समय में व्यस्त रखती है। इट्स मीन जैसे भी हम फ्री टाइम होता है ना, हमारे पास खाली समय होता है, तो हम अपनी वो टाइम हम अपनी हॉबी के नाम कर देते हैं। इट्स मीन अपनी जो हॉबी होती है, जो शौक़ होता है, वो उस टाइम पे हम करते हैं, ओके। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो शौक़ होता है वो हमें खाली टाइम पे हमें व्यस्त रखता है। तो यदि आपको एक दिन दिया जाए, सपोज दैट कि एक दिन दिया जा रहा है कि आपको एक दिन में आपको एक चांस दिया जाए, अवसर दिया जाए कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना, उसको प्ले करना सीख सकते हैं, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को, कौन से वाद्यन को चुनेंगे, ओके, उसे बजाने, उसे प्ले करना सीखने के लिए, ओके। और अपने जो आंसर है आपका, उसका रीज़न भी देना है, क्या। जस्ट एंड हियर राइट दिस आंसर अकॉर्डिंगली, ओके। जो आंसर यहाँ पे राइट है वो मेरे अनुसार है, क्योंकि जो मैंने अपनी हॉबी के अनुसार राइट किया। यू कैन राइट your hobby here, okay, that if you had the chance to learn to play an instrument in a day, which one would you choose? कि अगर आपको एक दिन दिया जाए कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का, सीखने का, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। वैसे मैंने तो यहाँ गिटार राइट किया हुआ, बिकॉज आई लाइक गिटार, ओके। और मुझे अगर ऐसा कोई चांस मिला तो मैं गिटार बजाना सीखूंगी, ओके। सो लेट्स सी, इफ़ आई हैड चांस टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट इन अ डे, आई वुड चूज़ अ गिटार बिकॉज आई लव प्लेइंग गिटार। इट्स अ रियली गुड इंस्ट्रूमेंट, आई फील वेरी गुड व्हेन आई प्ले गिटार, ओके। इट मीन्स यदि मीन्स मुझे मिले, चांस मीन्स अवसर, टू प्ले मीन्स बजाने का, एनी मीन्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट मीन्स वाद्यन, इन अ डे मीन्स एक दिन में। इफ़ आई हैड चांस टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट इन अ डे, यदि एक दिन में मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वाद्यन बजाने के सीखने का मुझे मौका मिले, ओके, कि मुझे एक दिन दिया गया कि हाँ मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, लर्न करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना है, आई वुड चूज़ अ गिटार, ओके। मैं तो गिटार को चुनूँगी, ओके। मैं सबको साइड कर दूंगी, वायलिन को, फ्लूट को, पियानो को, सबको साइड कर दूंगी, मैं गिटार को चूज़ करूंगी। आई लव प्लेइंग गिटार, क्योंकि मुझे गिटार को प्ले करना है, इट्स मीन गिटार को बजाना बहुत ही पसंद है, ओके। इट्स रियली अ गुड इंस्ट्रूमेंट, ये सच में एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही अच्छा वाद्यंत्र है। आई फील वेरी गुड व्हेन आई प्ले गिटार, तो मैं बहुत ही बेटर फील करती हूँ, बहुत ही अच्छा फील करती हूँ, ओके, जब मैं गिटार को प्ले करती हूँ, ओके। तो आई लव गिटार, आई लव प्लेइंग गिटार, कि मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है, ओके। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट राइट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ गिटार, वायलिन, फ्लूट, पियानो, जो एज यू विश, ओके। तो मैंने यहाँ पे अपनी हॉबी राइट की हुई है, तो आपको, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है थिंक आंसर, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर राइट कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट, टुडे इज योर क्लास वर्क। Firstly, student, I hope you must have understood exercise B second and exercise C. Okay, you have no problem in this exercise. मैं यही आशा करती हूँ कि exercise B second और exercise C आपको समझ में आई होगी, ओके। स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ओके, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो टीच कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ओके। जो भी टीचिंग करी वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर, ओके। स्टूडेंट, today's your class work is that note down exercise B second and exercise C of chapter second The King's Magic Drum in your fair English literature notebook. It's a 2 days class work and your homework is that learn exercise B second and exercise C of chapter second The King's Magic Drum from your fair English literature notebook. It's a 2 days homework, okay. Just send all complete your class work and send me your work here. Thank you.